going to be moles. ठीक है? Or directly, remember our focus is past papers. So the very first topic is going to be moles. The first thing is, what is a mole? Uski definition. You can be asked about the definition of a mole. So it's the amount of particles. There are many different definitions of a mole. So amount of particles equal to 6.02 times 10 to the power 23, which is also known as the Avogadro's constant, or Avogadro's number. ठीक है, simple definition is the amount of particles equal to this number, 6.02 times Yes. 10 power 10 Yes. to the power 23. So that's the definition of what a mole is. Uh, इसकी और भी definitions है. It's the amount of particles in 12 grams of carbon 12. ठीक है, that's also a definition. वो भी basically यही होगा. Now this number is very important. अच्छा, first thing, what's a mole? Mole is a unit for counting. मतलब मैं simple words में वो तो definition होगी. It's a unit for counting, and there are many units for counting which can be used. You have, for example, you have uh, dozen. That's a unit for counting. ठीक है, dozen stands for 12. ठीक है, so numbers are represented by units. So different units, they represent different numbers. If you have 5 dozen something, that means that's 12 into 5. That would be 60. ठीक है, so 60 number could be represented by this unit, which is a dozen. इसी तरह million होता है. ठीक है, for example, if you have 5 million, so a million is basically 10 to the power 6. So that means you have 5 times 10 to the power 6. ठीक है, ये number है. So million, billion, trillion, etc., hundreds, these are all units for counting. अच्छा, the good thing about units is that as your counting increases, your unit keeps changing. ठीक है, if you're buying eggs, you're going to be counting in dozens. If you're counting cars, you're counting the population of a city, you'll be using this unit, million. ठीक है, if you're counting the population of the planet Earth, then it's going to be billions. If you're counting the trade of America, that's going to be in trillions. Stars count कर रहे हो तो trillions में होगा. तो unit keeps changing with size. तो इसी तरह mole है, nothing different. ठीक है, mole is one mole is represented by 6.02 times 10 power 23, and that's a huge number. ठीक है, it's probably one of the biggest numbers that you'll encounter, क्योंकि atoms होते बहुत ज्यादा है. ठीक है, you have a lot of atoms. आम जिंदगी में ना ट्रिलियन से ज्यादा आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, यू आर एट बेस्ट काउंटिंग स्टार्स, तो वो ट्रिलियंस में हो जाएगा. लेकिन when you're counting atoms, atoms are so many कि you need a big number. ट्रिलियन के अंदर 12 zeros होते हैं, मोल के अंदर there are 23 zeros. So it's a huge number. ठीक है, so atoms और molecules होते बहुत ज्यादा है. ठीक है, so it's going to be specifically used for counting atoms and molecules. अच्छा, फिर conversion. How do you convert? For example, यहाँ पे 5 dozen था ना, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो तो पहला फॉर्मूला कर लेते हैं. लेट्स क्विकली गो थ्रू द फॉर्मूलाज. तो अगर यूनिट गिवन हो एंड यू वांट टू कन्वर्ट, फाइंड द नंबर, यू मल्टीप्लाई 5 को ना उसके यूनिट से 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 60. अगर नंबर गिवन है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स यूनिट, तो उसको 12 से डिवाइड कर दो. तो अगर कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वापस जाना है तो 12 से डिवाइड कर दो. मोल्स में भी यही करना है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी नंबर टू अ यूनिट, यानी इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी number to moles, तो आप क्या करोगे? You'll divide the number of particles by the Avogadro's number, which is 6.02 times 10 power 23. ये basic rule है यूनिट के अंदर ना कन्वर्जन का. ठीक है, मतलब इसी तरह जैसा ये फॉर एग्जांपल यू हैव 48, उसको अगर डजन्स में कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड करोगे? डजन से. 12 से डिवाइड कर दो, यू गेट 4 डजन. ठीक है, सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू इट्स यूनिट, आप उसी यूनिट से डिवाइड करो, which is 6.02 times 10 power 23. तो कोई भी नंबर होगा वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. So that's the first formula.
And remember कि our counting would always be in moles. ठीक है? So we'll be dealing with moles. Atoms को हम count ही moles में करेंगे. So that's the first formula. अच्छा, is this clear? Yes or no? Is this clear? पहले भी किया हुआ आप लोगों ने. Yes, sir. ठीक है. So अच्छा, then you have अच्छा, इस पे ना I'll give you some ideas as well. For example, if you have 10 into 10 power 21 atoms of sodium. अब कुछ ना मैं mistakes वगैरह ना थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. ठीक है? I'm going to slightly deviate. पहला फॉर्मूला तो हो गया हमारा. ठीक है? We'll note the end में जाके ना हम ये फॉर्मूला सारे इकट्ठे कर लेंगे. Another thing about this is about moles is कि a lot of people they like to use ratios. ठीक है? A lot of people are taught using ratios. मतलब फॉर एग्जांपल यही कन्वर्जन ना वो इस तरह करते हैं कि जी 1 मोल में ना इतने पार्टिकल्स होते हैं. जो भी चीज़ है 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 होते हैं. तो अगर मेरे पास 3 मोल्स होंगे तो आई विल हैव वो एक्स करेंगे, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो निकालेंगे कि एक्स वुड बी इक्वल टू, और इस तरह करके रेशियोज यूज करते हैं. Which is fine, there's nothing wrong with it. The only thing is कि AS के अंदर you have a lot of issues with time. So you have to be very quick. So formulas are good. Formulas, remember, using formulas, if you're not using formulas and you're using ratios instead, ratios slightly consume time. Formulas जो होते हैं ना, अगर आप formulas fingertips पे ना, they are quicker. ठीक है? You have to be quick in AS. Time is going to be a huge issue. अच्छा, खैर 10 into 10 raised by 21 atoms है of sodium. तो मैंने moles find out करने हैं. How many moles this would be? So what I'm going to do is, अच्छा, moles के लिए जो unit जो letter usually use होता है ना, that's N. So the moles of sodium would be, अच्छा, working के अंदर ना this would help. ठीक है? Make sure you're working when you're working things out, so the working on the paper is clearly written. अच्छा, so moles of sodium, that is going to be 10 times 10 power 21, and it's going to be divided by the Avogadro's number, 6.02 times 10 power 23. ठीक है? Now a few mistakes that people tend to make and very frequently make, they don't know how to use a calculator. ठीक है? Make sure you use your calculators properly. Calculators में brackets होते हैं. Calculator को ना clearly, calculators are very dumb devices. You have to be very careful when you're using a calculator, क्योंकि calculator ना multiplication division कभी कभार अपनी मर्जी से करना शुरू कर देता है, especially if you give it a very big expression. तो make sure you use brackets. उसको clearly बताना कि मैं ये पूरी चीज जो है ना, ये जो numerator को मैंने brackets में डाला हुआ है, I'm trying to divide this entire thing by this entire thing. ठीक है? So make sure you use calculators very carefully. अब पता नहीं मेरे पास ये जो desktop है calculator, is this sufficient or not? अच्छा, fraction का भी option है इसमें. फिर 10, how would I do? एक second on this calculator, just 1 second. किसी और है E लिखा है कि नहीं? Just 1 second. ये तो decimal है. So I'll use the calculator on my desktop वाले calculator में. I think that is not sufficient for this. ठीक है, somebody has calculated. Just make sure you get the idea. Okay, when you're doing calculations, brackets, put brackets. They're very important. ठीक है? Expressions को ना clearly calculator के अंदर state करना. As anyways, somebody wrote an answer and the answer was 0.0166 moles. ठीक है? So this one is 0.0166 moles. अच्छा, anyways, now Mikhail मेरे ख्याल से he wrote this answer. Now the issue is he rounded this answer because I'm assuming that this is a rounded value क्योंकि, or maybe it's not, लेकिन it feels as if it's a rounded value क्योंकि 10 divided by 6.02 अगर मैं अपने कैलकुलेटर पे भी करूँ ना, अच्छा ठीक है, he's saying it's a rounded value. अच्छा, so this is a rounded value.
So why is he rounding the value? Why is he writing the answer and rounding the value? So again, something very important. Okay, and this is very important because marks are going to be cut when you're studying when you're writing exam for AS. O levels में इसका कोई ख्याल नहीं रखता था. मतलब how do you decide what significant figures are going to be used? ठीक है, again these are minor issues but you lose marks for that. एक आध मार्क ना इसी में चला जाता है, स्पेशली प्रैक्टिकल्स वगैरह के अंदर और इन चीजों में ना. तो हाउ डू यू फिगर आउट के मतलब इफ आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन तो मैंने ये राउंड क्यों किया है 0.016. कैलकुलेटर तो इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू दे रहा था. मतलब ये देख भी लेते हैं कि कैलकुलेटर एक सेकंड बस 10 डिवाइड बाय 6.02 मैं कर लेता हूँ तो अच्छा इट्स गिविंग यू अ प्रीटी लॉन्ग वैल्यू. अब इतनी लंबी वैल्यू भी नहीं लिख सकते, इट्स अ वेरी वेरी बिग वैल्यू. तो राउंड तो करना ही करना है. बट व्हाट्स द रूल फॉर राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स? अच्छा द रूल इज एंड पहले तो रूल से पहले ना ये समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यू. मतलब वन ऑब्वियस डिफरेंस इज कि सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट है. अच्छा टेक्निकली मतलब कैलकुलेटर में जब पुट करोगे ना this value and this value are exactly the same. I mean there's no difference. This is 0.2, this is 0.2 as well. लेकिन केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, साइंसेस के अंदर the two values are also very very different as well. ठीक है, how are they different? The reason they're different is कि जब आप कहते हो ना this is written to one significant figure, ठीक है, 1 s dot f. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इट्स द फर्स्ट नंबर. जब भी वैल्यू में ना जो फर्स्ट नंबर है दैट्स उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हो एंड दैट्स योर सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, सो दिस इज यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, उधर ही खत्म हो गई है. तो दैट मींस इट्स वन सिग्निफिकेंट फिगर. दिस वन इज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो there's a difference between significant figures. अच्छा उस डिफरेंस का करना क्या है? उस डिफरेंस का मतलब ये है कि रिमेंबर लैब के अंदर ना आपके पास apparatus होता है. फिजिक्स केमिस्ट्री लैब के अंदर यू हैव डिफरेंट apparatuses. Different apparatuses have different accuracy. मतलब उसके अंदर डिफरेंट एक्यूरेसी होती है. नाउ दीज सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रिप्रेजेंट एक्यूरेसी. मतलब अगर ये 0.2 लिखा हुआ है ना खाली, इसका मतलब ये कि 0.2 के बाद जो अगला डेसिमल प्लेस है ना उसका हमें नहीं पता कि क्या है. इट कुड बी 0.21, इट कुड बी 0.201, इट कुड बी 0.22. वी नॉट श्योर कि व्हाट दिस नंबर इज एंड वी नॉट इवन श्योर व्हाट दिस नंबर इज क्योंकि हमारी डिवाइस इतनी एक्यूरेट ही नहीं है. जस्ट वन सेकंड. ठीक है, लीस्ट काउंट इज टू बी नोटेड. बट व्हाट डज सिग्निफिकेंट फिगर मीन इन केमिस्ट्री? कि अगर खाली 0.2 लिखा हुआ है ना that indicates कि your value is accurate up to this point. उससे आगे ना probably अगर आप थर्मोमीटर से वैल्यू ले रहे हो ना तो शायद उसके आगे कोई वो ग्रेजुएशन ही नहीं है. तो you don't know what these numbers are. ठीक है. अच्छा लेकिन so this value and this value, the only difference between these two values is this value is more accurate. किसके अंदर you're sure कि this decimal is the first decimal place is 2. You're sure that the second one is 0. You're also sure that the third one is also 0. उससे आगे जो fourth decimal place है, you're not sure. उससे आगे आपको नहीं पता. But your accuracy ends over there. ठीक है? So remember this. Significant figures, they represent they represent accuracy. ठीक है? So this value is more accurate. और उसके बाद uncertainty start हो जाती है. Not sure what these values are. Either value is even more accurate. उसके बाद you're not sure what the value is. अच्छा ये idea तो clear है ना? Yes or no? ठीक है, accuracy वाला part. Is this clear? अच्छा then you have we're done with that. ठीक है, significant figures represent accuracy. Now the thing is कि let's say कि आप ना burette से ना value लेते हो. You have burette. अब burette जो है ना that's accurate up to 2 decimal place. तो let's say your value is 25.40 cm3. ठीक है, इससे ज्यादा ना वो accurate है ही नहीं. The burette is not accurate. So the burette is not accurate. अब let's say you have a question, a moles question, and you do some calculations. और किसी तरीके से ना इस वैल्यू को यूज करते हुए
you calculate concentration. ठीक है, जो मर्जी क्वेश्चन है, we're not solving the question right now. I'm just saying कि initially now you went to the lab, did an experiment. आपका starting point था कि you got a burette value, and from that value you did some calculations and you ended up finding the concentration, and your concentration came out to be 1.66349 और वो चली जा रहा है मोल per dm cube. ठीक है, so it's a trailing decimal place. Calculator के ऊपर ना बहुत बड़ा नंबर आ रहा है. Now the thing is कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट थी, 1 2 3 और 4. तो योर स्टार्टिंग वैल्यू जो आपने यूज की थी दैट वाज 4 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट. तो इट वाज 4 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट. तो आपका आंसर उससे ज्यादा एक्यूरेट किस तरह हो सकता है? जो इनिशियल वैल्यू आपने यूज की थी फॉर कैलकुलेटिंग दिस आंसर, इफ दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट, तो योर आंसर ओवर हियर इज आल्सो गोइंग टू बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट. इट कांट बी मोर एक्यूरेट देन दैट, क्योंकि उसके बाद तो अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद वाले जो नंबर्स हैं दैट्स जस्ट क्वेश्चन मार्क के 4 0 के बाद क्या आ रहा है, वी आर नॉट श्योर. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वी आर नॉट श्योर. तो हमारी तो एक्यूरेसी खत्म हो गई है वहां पे. तो जस्ट रिमेंबर दैट योर द रूल इज कि जो भी इनिशियल वैल्यूज होंगी ना, देयर इज अ मिनिमम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल. तो योर वैल्यूज यानी यहाँ पे राउंड करना पड़ेगा. इट्स गोइंग टू बी 1.66 and 6. तो लीस्ट significant figure rule, accuracy should not exceed the least significant figure used in the question. You can't be more accurate than the values that are provided to you. ठीक है, सॉरी यहाँ पे you can't be more accurate than the values that are provided to you. So least significant figure rule कि अगर एक वैल्यू 2 significant figure है, एक वैल्यू 4 significant figure है, उन दोनों को यूज करते हुए आप कोई कैलकुलेशन करते हो एंड यू गेट लॉट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो 2 significant figures और 4 significant figures यूज कर रहे हो तो योर आंसर कैन नॉट बी more accurate than 2 significant figures. ठीक है, is this clear to everyone? Yes or no? I said then there's another mistake that people make, and that is, I said the other mistake is, which you shouldn't do is कि look over here कि मैं what am I doing? I'm rounding the value, right? तो let's say question के अंदर ना there are tons of different steps. ये खाली step 1 था. तो I'm rounding the value. Remember one thing कि अगर हर step पे ना आप value अब पेपर के ऊपर लिखते हुए ना आपने round करना ही करना है. You have to use the least significant figure rule. नहीं वही मैं मिकाइल मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है ना, मोल्स इक्वल टू मास ओवर एमआर ना. ठीक है, मतलब एक कैलकुलेशन करता हूँ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर यूज करने हैं. ठीक है, ये भी डिस्कस तो नहीं किया लेकिन चलो पता होगा. अच्छा, लेट्स से मास गिवन है 10 डॉट बल्कि कर लेते हैं 1.2 ग्राम्स गिवन है मास. ठीक है, आपका जो मेजरिंग बैलेंस था ना वो टू सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट था या 1 डेसिमल प्लेस एक्यूरेट था. इट डिड नॉट गिव मी मोर एक्यूरेसी. उसने आगे नहीं बताया 1.21 है या 1.22 है या 1.20 है, बस उसने बताया 1.2 है. अच्छा, एमआर लेट्स से ये मैं सोडियम मेजर कर रहा हूँ तो 23 है. अब पीरियोडिक टेबल में वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी है. ठीक है, सो दिस इज एक्यूरेट अप टू 3 significant figure, this is accurate up to 2 significant figures. The rule is कि जब आंसर निकलेगा ना तो आपने ना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चूज करना है. यानी अभी मैं इसका आंसर निकालता हूँ 1.2 डिवाइड बाय 23. तो इफ आई डू दैट इट्स 1.2 डिवाइड बाय 23 एंड आई गेट दिस, ये लंबा चौड़ा आंसर आया. ठीक है, तो रूल ये कि ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में कौन सा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स.
So the answer that I'm going to choose is I'm going to round it to 2. 5 2 उसके बाद round कर दो बस. So it's going to be 0.052. So the answer to this one is going to be 0.052. I'm going to choose the least significant figure. Is it clear, Mikhail? Is this clear? चलिए ठीक है. तो ये हमारा रूल है. अच्छा, दूसरा रूल ये कि मतलब पहला रूल तो क्लियर है कि when you're writing answers you have to round values. The second is if a question has many steps. ठीक है, for example you're doing calculation. Step 1 random calculations. ठीक है, it's 10 divided by 3. ठीक है, let's say you did some calculation, it came out to be 10 divided by 3. 10.0 divided by 3.0 आ गया. तो ऊपर वाला number that's 3 significant figure accurate, नीचे वाला number that's 2 significant figure accurate. The answer would be 10 divided by 3 क्या होता है? 3.333 आता है. तो you round it off. ठीक है, you round it off to 2 significant figures. ये ठीक है, आंसर सही लिखा है. ठीक है. Now let's say you move to the second step. सेकेंड स्टेप में ना पहले स्टेप का जो आंसर है ना उसको मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 5 से. ठीक है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट आंसर बाय 5. व्हाट आई एम सेइंग इज एंड व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि ये वाला नंबर ना यूज करो बिकॉज दैट नंबर इज अ राउंडेड वैल्यू. ठीक है, मेक श्योर कि यू यूज दिस ओरिजिनल नंबर व्हिच इज, क्योंकि हर दफा हर स्टेप में राउंडिंग करोगे ना तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो डिस्टर्ब होती जाएगी, क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी अ राउंडिंग एरर. लिखते हुए ठीक है, लिखते हुए यू हैव टू राइट इट एज 3.3, लेकिन 10 डिवाइड बाय 3 एक्चुअली क्या आ रहा था? इट वाज कमिंग आउट टू बी 3.3, एक ट्रेलिंग थ्रीज थे. सो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना 5 से तो आप ये ओरिजिनल वैल्यू ही मल्टीप्लाई करो. ठीक है, इट्स बिकॉज इफ यू यूज द राउंडेड वैल्यू इन द नेक्स्ट स्टेप देन देयर इज गोइंग टू बी an error, a small tiny error that's going to get carried forward. क्योंकि 10 divided by 10 over 3 into 5 कितना बनेगा? 50 divided by 3 and it comes out to be, मैं दोनों वैल्यूज निकालता हूँ. It's going to be 50 divided by 3 and it comes out to be 16 point, और इसको मैं let's say 3 significant figure 16.7 हो जाएगा. ठीक है, let's say ये बल्कि वो क्योंकि मिनिमम 2 significant figure आ रहा है तो 17 राउंड हो जाएगा. ठीक है, up to 2 significant figures. Okay, my point is you're getting 16.667. अगर राउंडेड वैल्यू यूज करोगे ना तो आंसर जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. तो मेक श्योर कि यहाँ पे लिखते हुए तो आप वैल्यूज राउंड कर लो, बट व्हेन यू मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप एंड यू यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू, डोंट यूज द राउंडेड वैल्यू. वो जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उसी को यूज करो, उसके बाद एंड में फिर राउंड कर देना. लेकिन लेकिन ट्राई नॉट टू यूज राउंडेड वैल्यूज इन योर फर्दर वर्किंग. ठीक है, इज दिस क्लियर? एक सेकंड. हाँ, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि चल ठीक है. नहीं, अब वही ना फिर से वही इशू है. मैंने इधर राउंड कर दिया ना, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर रूल था कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू जो थी दैट वाज एक्यूरेट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैंने इसको राउंड कर दिया. लेट्स से इससे आगे कोई और स्टेप है और प्रीवियस स्टेप की ना वैल्यू जो है ना वो यूज होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप 2 की वैल्यू जो है ना वो लेट्स से डिवाइड बाय 5 हो रही है अगले स्टेप पे, स्टेप 2 की. तो डोंट यूज दिस वैल्यू. वो जो कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा था ना, ये वाली, ये यूज करो, नॉट द राउंडेड वैल्यू. तो ये मैं दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, पीपल लूज मार्क फॉर एक्यूरेसी एज वेल. ये लैब्स वगैरह में मोल्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड और बीच में खासतौर पे एंड में ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लंबे चौड़े मोल्स के. व्हाट हैपेंस इज एट द एंड ऑफ द डे आपकी ना परसेंटेज जो भी फाइनल आंसर आ रहा है ना मैथ्स में 10-15% का डिफरेंस आ रहा होगा एक्चुअल आंसर से. सो इज दिस क्लियर? दो चीजों का ख्याल रखना है.
and I'm going to repeat those two things. Look at three things. I've said three things. ठीक है, तीनों बहुत माइनर सी चीजें. The first one कि कैलकुलेटर को ना अच्छे तरीके से समझाना है कि ब्रैकेट्स यूज करना है कैलकुलेटर के अंदर. मेक श्योर यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ यूजिंग ब्रैकेट्स. एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैलकुलेटर को बताना है कि ये पूरी चीज जो है ना, मैं इस पूरी चीज के साथ डिवाइड करना चाह रहा हूँ. कैलकुलेटर को नहीं समझ आएगी. Second one, the significant figure rule. So if your calculation has values with different significant figures, use the least significant figure. Your answer cannot be accurate or more accurate than the least significant figure that are used in the calculation. And the third one is आंसर लिखते हुए तो राउंड करना ही पड़ेगा, लेकिन अगले स्टेप्स पे जब वैल्यूज जाएंगी, डोंट यूज द राउंडेड वैल्यूज, बिकॉज एवरी टाइम द वैल्यूज वो ड्रिफ्ट करेगा. आपका आंसर जो है ना, दैट वुड बी slightly, it would start to slightly deviate. अच्छा, all 3 points, is this clear? हाँ नाइला, that's what I किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? ठीक है नाइला, मैं आपको बस वो आंसर कर दूं कि वो जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू यूज करोगे, that's going to give you a more accurate answer. But that's the whole point. ठीक है कि आंसर लिखते हुए आपने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, उससे आगे आपने नहीं करना. मतलब जब आप अगले स्टेप में जा रहे हो ना, तो यूज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू. अच्छा, एनीवेज, कमिंग बैक टू मोल्स. ये तीनों पॉइंट्स ठीक है, माइनर पॉइंट्स है, दे वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगले में भी ना, अच्छा द नेक्स्ट फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं. मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय AR and MR. ठीक है, that's a formula that you might be familiar with. That's another way. अगर mass given है, you can find divide by the AR MR. और AR MR को ना, this is known as the molar mass. ठीक है, what's the molar mass? It's the mass of 1 mole of a substance. In technical terms, it is the relative atomic mass or molecular mass expressed in grams. अच्छा, इसमें ना ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे जब पेपर करके आते हैं ना, दे वो बड़े खुश होते हैं कि हमने तो A ग्रेड का, हमारा तो A स्टार आना चाहिए, और एंड में ना उनका A स्टार नहीं आ रहा होता. तो इट्स ऑल, वो एंड में ना इस तरह की 4-5 मार्क की आप गलतियां करते हो ना, तो यू क्रॉस द ग्रेड थ्रेशोल्ड टू अ लोअर ग्रेड. अच्छा, यहाँ पे भी ना, दिस फॉर्मूला मोल्स इक्वल टू मास ओवर AR/MR. पहले तो इस फॉर्मूले की लॉजिक क्या है? फॉर्मूले की लॉजिक ये कि जब आपके पास था, मतलब उसकी एग्जांपल में, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रक दैट्स फुल ऑफ एप्पल्स. सो लेट्स अज्यूम कि दिस ट्रक, काउंटिंग किस तरह करते हैं? तो देयर दिस ट्रक दैट्स फुल ऑफ एप्पल्स. ठीक है, पूरा भरा हुआ एप्पल से. तो हाउ डू यू फिगर आउट के हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन दिस ट्रक? या तो एक एक करके काउंट करो, लेकिन अगर उसके अंदर 10,000 एप्पल्स हैं, तो वो तो बहुत टाइम लगेगा किसी को एक एक करके ना एप्पल्स काउंट करना. सो दैट्स अ वेरी इनएफिशिएंट वे. जो नॉर्मली हम काउंटिंग करते हैं, पीपल डोंट काउंट लाइक दैट. सो व्हाट दे डू इज कि दे टेक द टोटल मास ऑफ द ट्रक. लेट्स इट्स अ 2000, मतलब इस ट्रक का जो कंटेनर है, इसकी जो टोटल मास है एप्पल्स की, दैट्स 2000 kg, and one of the apples is around 1 kg, the average weight of an apple. ठीक है, तो आप टोटल एप्पल्स को वेट करते हो, और दैट्स योर टोटल मास डिवाइड बाय द मास ऑफ द एवरेज एप्पल. लेट्स अज्यूम इट्स 1 kg. दोनों को डिवाइड करो, व्हाट डू यू गेट? इसका मतलब है कि यू हैव 2000 एप्पल्स. ठीक है, दैट्स हाउ यू यूजुअली काउंट. एक एक करके काउंट नहीं करते. एटम्स को भी इसी तरह काउंट करोगे कि आप एटम्स की टोटल मास लोगे, और फिर एक एटम की जो मास है ना, उससे डिवाइड कर देते हो. सो यू गेट द मोल्स. यू नो कि जी, अच्छा मेरे पास 10,000 ग्राम्स है ऑफ सोडियम,
and I know that 1 mole of sodium weighs this much. So how many moles do I have? ठीक है, that's how you count. So that's the logic behind this formula. पहले clear है logic, clear है formula की? Yes or no? Is this clear? That's the next part. ठीक है, that is also important, and that is people might lose one mark on this as well. तो वो थोड़ा सा ना ये AR और MR, what is AR and what is MR, इसके ऊपर थोड़ा सा ना, अच्छा मतलब AR और उसी MR की मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, बस एटम की जगह ना मॉलिक्यूल कर दो. अच्छा, what is AR? AR is the relative atomic mass. ठीक है, that's what it stands for, and its definition is that it is the average mass focus on the word average. Average का मतलब है कि सारों की mass एक नहीं होगी. जिस तरह उधर हमने एप्पल्स की एवरेज mass ली थी ना, कि तो इसी तरह अगर कार्बन का एटम है ना, not all of them are going to have the same mass. It is the average mass of an atom of an element compared to carbon 12. Okay, carbon 12 को इस तरह लिख लेते हैं, carbon 12 isotope. हाँ, मतलब AR and MR are the same thing, बस वो MR is for molecule. ठीक है, क्लियर है? मतलब यही एटम की जगह ना मॉलिक्यूल कर लो. मतलब मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, राइट? तो डेफिनेशन वही होगी. अच्छा, सो एक सेकंड, इसको हम बड़ा कर लें. अच्छा, सो द मेन पॉइंट, इफ यू लुक एट द प्योर टेबल, and let me open let me open the data booklet. Just give me 1 second. पहले तो याद रखो ये 9701 data booklet, ठीक है? You probably already know this. Always, ये सबसे बड़ा, always use this pure table. ठीक है? A lot of you already know what the atomic mass of certain elements is. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, बहुत सारे लोगों को ना ओ लेवल से रटा हुआ है कि कैल्शियम इज 40, लेकिन अगर 40 लिखोगे ना तो एएस में तो एक्यूरेसी के मार्क्स है, बिकॉज इफ यू लुक ओवर हियर, कैल्शियम इज, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, कैल्शियम इज नॉट 40. ठीक है, जैसे इफ यू कैन सी ओवर हियर द एग्जैक्ट वैल्यू इज 40.1. तो एक तो पहली बात है अपनी मेमोरी के ऊपर ना जाना. ठीक है, कि डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरी कि हाँ ठीक है सोडियम याद है मुझे 23 होता है. एक दफा जाके चेक कर लेना, खोल लेना प्योर टेबल के 23 है या 23 कुछ, अब जैसे यहाँ पे इट्स गिवन एज 23.0, चलो वो तो ठीक है, लेकिन a lot of elements, for example iron O levels में ना 56 होता था. people might memorize that कि जी iron 56 होता है, मोल्स का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, टाइम खत्म हो रहा है. लेकिन जब आप यहाँ जाके देखते हो, इट्स नॉट एक्चुअली 56, उन्होंने 55.8 दिया हुआ है. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि ये वाला प्योर टेबल यूज करना है, अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना. ठीक है, अगर पता भी है ना नाइट्रोजन 14 होता है, तो अगर पता भी है कि नाइट्रोजन 14 होता है, जैसे एक दफा जाके ना देख लेना कि यहाँ पे 14 ही लिखा हुआ है या 14 डॉट कुछ लिखा हुआ है. दैट्स वन थिंग. द अदर थिंग इज कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास. हर एलिमेंट का ना ये प्योर टेबल में रिलेटिव एटॉमिक मास ये नीचे बॉटम के ऊपर गिवन है. इनकी वैल्यूज ना ऊपर नीचे स्विच होती रहती हैं. ठीक है, आजकल नीचे चल रही हैं. केम्ब्रिज का जो नया प्योर टेबल आ रहा है उसके अंदर ये वैल्यूज, एटॉमिक मास की जो वैल्यूज हैं, दैट्स एट द बॉटम. तो मैं वापस उसके ऊपर जरा जाता हूँ. फर्स्ट थिंग कि भाई ये एवरेज क्यों है.
एवरेज इसलिए, मतलब कैल्शियम 40 क्यों नहीं है, मतलब कैल्शियम एवरेज इसलिए कि डिफरेंट एटम्स हैव आइसोटोप्स। वही एग्जांपल है जिस तरह वो एप्पल जो थे ना, वो सारों की मास एक थोड़ी होती है, या आइडेंटिकल तो नहीं होते। इसी तरह एटम्स दे नॉट आइडेंटिकल, दे माइट बी आइसोटोप्स। क्लोरीन के केस में दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि क्लोरीन ना दो टाइप्स के होते हैं, 35 एंड 37। उनमें न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। सो दे हैव डिफरेंट masses। जब आप एवरेज लेते हो ना, द एवरेज कम्स आउट टू बी 35.5। So the first thing is you're taking the average, and जब भी आप एवरेज लोगे ना, तो relative atomic mass always is in decimals. So if somebody is going to ask you to write the relative atomic mass whenever कोई भी question होगा, तो इससे ना डरना कि it's going to be in decimals। और प्लस mass है, mass जो होता है ना, वो होता ही, मतलब आपके पास let's assume, imagine you have a weighing balance, तो वो तो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। जब आप किसी चीज को वे कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जाते हो और एप्पल्स को वे कर रहे हो, अब आपका बैलेंस जितना एक्यूरेट होगा उतनी उसके डेसिमल प्लेसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका प्योर टेबल कितने डेसिमल प्लेसेस तक गया हुआ है, 54.9, लेकिन मे बी दे माइट बी अ डिवाइस दैट वुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, तो ये इसकी जो, जैसा आयरन है 55.8 गिवन है, तो हो सकता है इसके एटम्स का जो मास हो, दैट इज दैट इज वो बहुत एक्यूरेट हो, 55 पॉइंट लेट्स से 79987 कुछ इस तरह ट्रिलियन डेसिमल्स हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी। So my point is कि relative atomic mass is always going to be in decimals. First thing because it's an average. The second thing, it's mass. Mass की accuracy कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है? You can go till infinity. आप अपना equipment improve करते रहो, the decimal places would keep on increasing. अच्छा, then there's another thing, ठीक है? The other thing is कि in O levels you studied कि एक प्रोटॉन जो होता है ना, उसकी relative atomic mass क्या होती है? 1। एक न्यूट्रॉन जो होता है ना, उसकी relative atomic mass क्या होती है? 1। and an electron is 1 over 1836। ठीक है, relative mass, ठीक है। So it's you've studied this कि the relative masses are, और relative masses का मतलब है कार्बन 12 के कंपैरिजन में, ठीक है। So it's 1 and 1 and 1 over 1836। Now whenever you talk about mass, the reality is that it's not actually 1 is a whole number, ठीक है। mass कभी भी मतलब अगर आप एप्पल वे करने जाओगे ना, उसकी कभी भी एग्जैक्टली 1 kg नहीं होगी, वो तो आपकी डिवाइस पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसकी 1 kg के बहुत करीब 1.0000 करता हुआ, लेकिन कोई 19-20 का फर्क होगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जब आप ओलम्स में पढ़ते थे ना कि इट्स वन प्रोटॉन इज बेसिकली द रिलेटिव एटॉमिक द रिलेटिव मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1, इट्स नॉट एग्जैक्टली 1, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर, और एक्चुअली 1 से ना थोड़ा सा कम होता है, but in reality it's somewhere something like 0.999 करता हुआ ना कुछ होगा, depending on the accuracy of your apparatus। न्यूट्रॉन की भी ना 0.99 करता हुआ ना कुछ होगा। तो so the point is कि एटम की जो मास होती है वो होती क्या है? It's the mass of a proton plus the mass of the neutrons plus the mass of the electron as well। इलेक्ट्रॉन की भी थोड़ी सी मास होती है। तो अगर मैं कोई अकेला एटम भी पकड़ूंगा ना, उठाऊंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक एटम उठाता हूँ कि एल्यूमिनियम उठा लेता हूँ 27, तो इट्स 13 एंड 27। तो जब मैं इसकी टोटल मास करूंगा ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसके प्रोटॉन लेवल के ऊपर जाके मास मेजर करता हूँ, तो इट हैज 13 प्रोटॉन्स, it has 14 neutrons I think, and it has 13 electrons। अब the point is कि the mass would come very close to 27, क्योंकि वन प्रोटॉन की मास एग्जैक्टली 1 नहीं होती। ओ लेवल्स में तो हम यही करते थे ना कि जी 13 को ऐड करो, 14 को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन की क्योंकि इतनी कम है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मास ही बहुत कम है, तो जस्ट इग्नोर द इलेक्ट्रॉन्स। तो 13 प्लस 14 कितना बनता है? 27 बनता है। तो आप लिख देते थे 27 होल नंबर। बट रिमेंबर के नाउ द इशू इज द मास
अगर आप एक्यूरेसी की बात करें, it's not going to be exactly 27. It's going to be 13 protons. So it would be very close to 13, but not exactly 13. 12.98 हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा, लेकिन not exactly 13, क्योंकि प्रोटॉन की मास होती है वो exactly 1 नहीं होती. 14 न्यूट्रॉन्स तो वेरी क्लोज टू 14 होगा, लेकिन बट नॉट एग्जैक्टली 14, डेसिमल्स में होगा. और बीच में अगर वो इलेक्ट्रॉन की भी छोटी मोटी मास जो है ना 1/1836 वो भी ऐड करो, तो द वैल्यू, ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है ना एटॉमिक मास की, दैट वुड स्टिल कम आउट टू बी इन डेसिमल्स. ठीक है, सो इट्स नेवर अ होल नंबर. तो ये मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ. अब ये याद रखना, क्वेश्चन के अंदर अगर उससे ना रिलेटिव एटॉमिक मास लिखने को कहा है ना, या कैलकुलेट करने को कहा है, या जो भी करने को कहा है, and you write a whole number, you're going to lose marks for that. ठीक है, मैंने उसकी 2-3 रीजंस बता दिए कि why the relative atomic mass is never a whole number. कि आप एवरेज ले रहे हो, और मास जो होती है वो कभी, उसकी एक्यूरेसी आप डिवाइस पे डिपेंड करता है, जितना मर्जी एक्यूरेट कर लो तो वो उतने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस देना शुरू कर देगा. एंड द थर्ड थिंग वाज कि द बेसिक assumption is kind of wrong, कि one proton is equal to 1, which is not true. It's close to 1 but not exactly equal to 1. So when you add up the relative masses, they don't actually come out to be exactly 27. They come out to be very close to 27 but not exactly 27. ये clear है सारों को? ये पहला point. Is this clear? Yes or no? ठीक है, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी भी क्वेश्चन में ना रिलेटिव एटॉमिक मास किसी ने कहा है ना, तो वो होल नंबर ना लिखना. ठीक है, मार्क कटेगा उसका. अगली क्लास में ना इसी से स्टार्ट करेंगे. देयर इज अ थिंग कॉल्ड न्यूक्लियर नंबर एज वेल. हाँ, मतलब ये वो बुक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है. बुक्स के अंदर असल में पेपर अटेम्प्ट करने का तो तरीका लिखा ही नहीं होता ना. कि मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर्स जो है ना वो किन चीजों पे मार्क्स काट रहे हैं. ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, 3-4 मार्क्स आपके इसी में कट जाएंगे. ठीक है, बुक तो वही रॉजर नॉरिस इज अ गुड बुक. लेकिन ऑब्वियसली फिर वो मेरी जो बातें ना, वो फिर वो एग्जामिनर रिपोर्ट्स और मार्किंग स्कीम्स वो उनसे लिंक्ड है. ठीक है, कि जहाँ पे स्टूडेंट्स लूज मार्क्स. सो दिस इज वन थिंग. नहीं, कोई भी बुक एक्चुअली ठीक है. रॉजर नॉरिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट इन माय ओपिनियन. लेकिन मेरे ख्याल से I'll go with रॉजर नॉरिस. ये जो पीटर कैन की बुक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बुक, शायद अच्छी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना आपने पास पेपर्स पढ़ने हैं, तो बुक्स जो है वो बस रेफरेंस के लिए. बुक्स से डायरेक्टली पढ़ने का ना इतना फायदा नहीं होगा. मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन पेपर सॉल्व करना, मार्क्स लेना, उसके अंदर थोड़ा सा इशू होगा. चल ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास देन. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.